Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayasya Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. ये उसमें नहीं आता क्या? हाँ, वो वाला HDMI केबल इसमें लगाओ ना, आएगा. क्यों नहीं आएगा? आ गया HDMI. तो उस दिन भी आया. हाँ, अब नहीं आना, अभी नहीं आ गया. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. I muted you. ठीक है. श्लोका नंबर 4 ही किया, इतना ही किया बस. The Chrome, the mobile is not right. Some problem with the device if it's not fixed properly. Fixed, right? Can do again. Ekada pravishad goshtam sardulo nishivarshati shayana gava uttaya bhitasta babhrumur vraje. We go to the 9th canto, 2nd chapter, 4th shloka. 9, 4, 2. Ekada pravishad goshtam Sadulo nishivarshati Shayana gava uttaya
भीतस्तावाभृमु व्रजे एकदा प्राविशद्गोष्ठम् एकदा प्राविशद्गोष्ठम् शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गावोत्थाय पीतास्तावप्रमुच्यते एकदा प्राविशद्गोष्ठम् शार्दूलो निशिवर्षति शयानागाव उत्थाय पीतास्तां ब्रह्ममुद्रजे एकदा प्रतिष्ठा पुष्णं साधुयो निशिवसति शयनागाव उत्थाय विवादागव्रमुद्रजे Ekada, once upon a time, Pravisha entered Goshtam, the land of the cowshed, Sardulaha, a tiger, Nishi, at night, Varshati, while it was raining, Shayanaha, lying down, Gavaha, cows, Uttaya, getting up, Bhitaha, fearing, Taha, all of them, Babrumuhu, scattered here and there, Vraje, the land surrounding the cowshed. Once at night, while it was raining, a tiger entered the land of the cowshed. Upon seeing the tiger, all the cows who were lying down got up in fear and scattered here and there on the land. When the very strong tiger seized the cows screamed in distress and fear, and Prishadhara, hearing the screaming, immediately followed the sound. He took up his sword, but because the stars were covered by clouds, he mistook the cow for the tiger and mistakenly cut off the cow's head with a great force. Because the tiger's ear had been cut by the edge of the sword, the tiger was very afraid and fled from that place while bleeding on the street. In the morning, when Prishadhara, who was quite able to subdue the enemy, saw that he had killed the cow, although at night he thought he had killed the tiger, he was very unhappy. All the Prishadha had committed the sin unknowingly. His family priest Vashishta cursed him by saying, "In your next life you shall not be able to remain a Kshatriya. Indeed, you shall have to take birth as a Shudra because of killing the cow." Vasishtha was not free from Tamo, mode of ignorance, as the family priest or spiritual master of Kshatriya. Vasishtha should have taken Kshatriya's offense very lightly, but instead Vasishtha cursed him to become a Shudra. It is the duty of a family priest not to curse the disciple, but to give him relief through the performance of some sort of atonement. Vasishtha, however, did just the opposite. Therefore, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur say that he was a Gurmati. In other words, his intelligence was not very good. When the hero Prishadhara was thus cursed by his spiritual master, he accepted the curse with folded hand. Thus, having controlled his senses, took the vow of brahmacharya, which is approved by all the sages. Thereafter, Prishadhara, gaining relief from all the responsibilities, became peaceful in mind and established control over all his senses. Being unaffected by the material conditions, being pleased with whatever was available by the grace of the Lord to maintain the body and soul together, and being equal towards everyone, he gave full attention to the Supreme Personality of Godhead Vasudeva, and who is the transcendental super soul free from material contamination. Thus, Prishadhara, fully satisfied in pure knowledge, always keeping his mind on the Supreme Personality of Godhead, achieved pure devotion service of the Lord and began traveling all over the world without affection for material activities, as if he were deaf, dumb, and blind. With this attitude, Prishadha became a great saint, and when he entered the forest and saw the blazing fire, he took his opportunity to burn his body in the fire.
that he achieved the transcendental spiritual world. Upward version of God. The Lord said in Bhagavad Gita 4.9, "Tu karmcha vidyam, evam yogi sattva, tattva tatim pulanjana, natmam eva swarupa." One who knows the transcendental nature of my experience and activity does not, upon leaving the body, takes his birth again in this material world, but attains my eternal abode. O Arjuna, Vishadara, thought of his karma was first to take his next birth as Shudra, but because he took to save the life, specifically concentrating his mind always upon the Supreme Personality of God, he became a pure devotee. Immediately after giving up his body to the fire, he reached the spiritual world, as mentioned in Bhagavad Gita, on 80, the judge of the devotional situation. Devotional service performed by thinking of the Supreme Personality of Godhead is so powerful that although Sadhara was crushed, he avoided the terrible consequence of becoming a Shudra and instead returned home back to God. As stated in Brahma Samhita, just in the Kopam Atvendra Ahosva Karma, Bandhana Rupam Bhadani Bhakti Karmani Vidhati Kintu Bhakti Bhajan Govindam Bhakti. Those who engage in devotional service are unaffected by the results of the material activity. Otherwise, everyone from the smallest microbe up to the king of heaven, Indra, is subject to the laws of karma. A pure devotee, being always engaged in the service of God, is exempt from these laws. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासुति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम यौन राम राम हरे हरे। इसको भी समझना है, 0 पे रखना है, ऐसा रहना चाहिए। Hare Krishna, 9th canto, 2nd chapter and 4th verse. Ekada pravishad goshtam surdulo nishivarshati shardulo nishivarshati shayana gava uttaya Hitasta babrumu raje. Once at night, while it was raining, a tiger entered the land of the cowshed. Upon seeing the tiger, all the cows who were lying down got up in fear and scattered here and there on the land. So here is a very interesting incident and some wonderful lesson. So there was a personality called Prishadhara. He was also a disciple of Vashishta. Vashishta is a very powerful sage. And his service was to take care of the cows. Goraksha is part of the Vedic culture. Even though cows worshipped
but it is so interesting that it has so many benefits for the human society. Yeah. It's such an intelligence. The Vedic culture identified the most important animal as cow. Therefore, Krishna is Gopala. Proper jokes, just like today, आजकल हमारे लोग क्या पालते हैं? कुत्ते पालते हैं. पहले वैदिक कल्चर में लोग गाय पालते थे, ज्यादा बुद्धिमान थे. और इतने फायदे हैं गाय के. गाय का दूध मिलता है जो शरीर के लिए बहुत अच्छा खाना है. प्रॉपर जी बोलते थे मैजिक फूड है, मैजिक फूड. उसका फायदा इतना है कि उसको मैजिक बोला जाता है. दूध से आपका घी भी बनता है जिससे आप यज्ञ कर सकते हैं. आपको फायदा ही फायदा है. और ऊपर से गाय का इवन इतना ये जानवर इतना शुभ है कि इसका काउ यूरिन से बहुत तरह की बीमारी सॉल्व हो जाती है. आयुर्वेद में काउ यूरिन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है और टेस्ट भी हो चुका है. और फिर काउ डंग, वो भी बहुत फायदे का है, बिकॉज आप किसी भी जानवर का जो स्टूल बहुत वेस्ट है. ये हम ही नहीं बोल रहे, बड़े बड़े साइंटिस्ट ही बोलते हैं कि अभी दुनिया को बचाएगा बुलशिट. मतलब काउ डंग, इसी से दुनिया बचेगी. बिकॉज ये जो केमिकल फर्टिलाइजर से खाना बनाया है ये जहर है. ये समझ रहा है लोगों को, इसलिए ऑर्गेनिक खाना जो बहुत महंगा मिलता है लोग तब भी खरीदते हैं. क्यों खरीद रहे हैं उसको? लेकिन काउ डंग बहुत ज़रूरी है आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए. और काउ डंग से कंपोस्ट बनता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग के लिए. फर्टिलाइजर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. और इससे आपको जो खाना बनता है वो आपके लिए, जो सब्जी आप खाना उगाते हैं, आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है. तो ये देखिए क्या एक मतलब बुद्धि सोचिए. सिमिलरली तुलसी को भी पूजा करा जाता है. उसके तो बहुत हैं आध्यात्मिक रीज़न, तुलसी के बहुत है. भगवान का महान भक्त है. लेकिन तुलसी के भी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि कल ही मैं पढ़ रहा था कि कितने उसमें से 40 पूरा जीनोम तुलसी का ब्रेक डाउन किया गया अभी रिसेंटली. दे टुक श्याम तुलसी और उसका पूरा जीनोम ब्रेक डाउन करके देखा कि इट इज़ सो यूजफुल दिस प्लांट. And it has the power to even cure cancer, they are saying, the doctor. This is magical. Surprising ये होता है कि इन लोगों के पास तो ऐसा टेक्नोलॉजी था नहीं भाई. दे have वेद को फॉलो किया. वेद ने बोला है गाय को रखो, लोग गाय को रखे, कुत्ते को नहीं. वेद ने बोला है तुलसी को पॉइंट आउट किया. अब लाखों पेड़ हैं, तुलसी को पॉइंट, इसको आप ध्यान दो. तो इसका आध्यात्मिक गाय का सेवा और तुलसी का सेवा आपको बहुत तरह से बेनिफिट देता है, आध्यात्मिक रूप में भी गौ सेवा. लेकिन उसको छोड़ो, उसका भौतिक बेनिफिट भी इतना है कि समाज में कोई भी घर हो पहले जरूर तुलसी उसके घर में उगाई जाएगी. बिकॉज भगवान कोई भी भोग तुलसी के बिना आप नहीं लगा सकते. तो ऑटोमेटिकली सब आदमी तुलसी खा रहा है. तो एक तो आध्यात्मिक फल मिल रहा है, भगवान को तुलसी देने से भगवान खुश हो जाते हैं. भगवान का महान भक्त है. लेकिन आप उसको ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे और तुलसी से आपकी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी. तो देखिए कितना बुद्धिमान एक समाज था. तो उस समय में गो हत्या को बहुत बड़ा पाप समझा जाता था. अभी तो लोग इस चीज को समझते नहीं है. लोग उसको खाने के रूप में देखते हैं. खाने के लिए बहुत कुछ है, उसको क्यों खाना चाहते हो? अगर कोई मांसाहारी आदमी भी था वैदिक कल्चर में, वो गाय को नहीं छूता था. वो बछड़ा ये सब, लेकिन गाय को नहीं छुएगा कोई भी. तो प्रभुपाद जी बोलते थे गाय की हत्या करना मतलब समाज को नष्ट करना. जितने बाल गाय के शरीर में हैं उतने जन्म आपको नरक में तड़पना पड़ता है. तो मूर्ख की गाय की हत्या करेगा. तो ये तो कल्चर नहीं है. प्रभुपाद जी बोलते थे ये कैसा सिविलाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, ये क्या एडवांसमेंट हो रहा है सिविलाइजेशन का. आप जाके निहत्ते गाय को मार देते हैं, ये क्या सिविलाइजेशन है. कोई भी आचार्य लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे. बड़े बड़े अपने कंट्री को सिविलाइज्ड बोलते हैं लोग, लेकिन गोहत्या में उनको हिचक भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती.
पहले तो चलो एक आदमी ऐसा, अभी तो मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस, मैकेनाइज्ड मतलब बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ लाखों करोड़ों गाय को जैसे सब्जी की तरह पाला जाता है, और फिर उनको मैकेनाइज वेरी इंडस्ट्रियल स्केल में उनको लाखों करोड़ों को मारा जाता है। आपको मालूम है, देखने को नहीं होता उनका, मतलब पैर बांध के ऐसे जैसे होता है ना मशीन की तरह, हजारों गाय एक एक टाइम में कटता रहता है, पूरा मैकेनाइज, पूरा मशीन से बनाया हुआ सिस्टम। पहले तो आदमी करता था, चलो एक गाय, अभी तो ऑर्गेनाइज। Anyway, so this is not appreciated in the Vedic culture, and Vashishta was extremely angry when he came to know he has done this. But Prabhupada says थोड़ा तमोगुण उसमें वास था, क्योंकि उस शिष्य ने गलती जानबूझ के नहीं करी। अब गलती जानबूझ के नहीं करी होती, उसको अपने शिष्य की सुरक्षा करनी चाहिए, ये वशिष्ठ का काम है। लेकिन उसमें उसका दुर्मति हो गया तमोगुण के कारण थोड़ा। वैसे तो वशिष्ठ बहुत बड़े संत हैं, सत्वगुण में है, लेकिन शुद्ध सत्व तो बहुत रेयर होता है। शुद्ध सत्व महान भक्त को मिलता है, जिसमें उसमें रजोगुण तमोगुण कभी भी नहीं। लेकिन ऑर्डिनरी डिवोटी में सत्वगुण तो होता है। अब नहा धोके तो सबको सत्वगुण का थोड़ा आभास होता है, लेकिन थोड़ा कोई बेइज्जत कर दे तो तमोगुण बाहर आ जाता है, ठीक है ना। रजोगुण तमोगुण है। तो वशिष्ठ मुनि भी महान संत है, लेकिन कभी कभी तमोगुण आ जाता है और उनके हाथ से गलती हो जाती है। अपने बेमतलब है, अपने शिष्य को उन्होंने श्राप दे दिया, तूने गाय की हत्या करी बेशरम, अगला जन्म तेरे को एक शूद्र का मिलेगा, है ना। दिस इज द श्राप। अब लेकिन उनका जो शिष्य था उनसे आगे निकला, उसे अब क्या करें, चलो मेरा तो जन्म दोबारा जन्म होने वाला है, वो भी शूद्र का मैं, जिसमें भगवान के भक्ति का अवसर बहुत कम मिलता है। तो ऐसा करता हूं मैं, चलो ये सब दुनिया छोड़ो, अभी भगवान के चरण चला जाता हूँ। और उसने बहुत ध्यान से अपना मन पूरी तरफ से भगवान पे एकाग्र कर दिया और भक्ति में प्रगति करने लगा। करेक्ट, भक्ति में प्रगति में बता रहा था होती है जब आपका मन भगवान में फिक्स हो जाए। असत्संग त्याग, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असत्संग त्याग। कनिष्ठ अधिकारी मतलब उसको कृष्ण कथा और ग्राम्य कथा में बहुत मुश्किल होता है डिफरेंशिएट, करेक्ट। वो स्ट्रगल कर रहा है, कृष्ण कथा सुनता है लेकिन ग्राम्य कथा की तरफ आकर्षण भी होता है उसको। अभी कनिष्ठ भक्त है, अभी कनिष्ठ भक्त। मध्यम अधिकारी ग्राम्य कथा पूर्ण रूप से छोड़ देता है, उसका मन अभी कृष्ण कथा में लीन हो जाता है। वो 24 घंटे कृष्ण कथा पढ़ता है, वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता, ठीक है ना। मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी को भी साधना नहीं रही, कृष्ण प्रेम दिल में आ गया, वो तो सोच ही नहीं सकता, बेमतलब की चीजें तो सोच भी नहीं, उसको तो मन में कृष्ण का सेवा का आनंद भर गया है ना, उसको माया छू भी नहीं सकती। तो ये 3 स्थिति हैं। अभी सोचो तो उसने अपने मन को उत्तम अधिकारी पहुंचने का लक्ष्य बना दिया, पूरी तरह से भगवान की तरफ फोकस करा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यही कृष्ण भक्ति है। हमारा मन इधर बिखरा है, उधर बिखरा है, इधर बिखरा है, उसको आप कृष्ण के चरण में ला दो, वो शुद्ध भक्ति है ना। शुद्ध भक्ति मतलब अपने मन को, कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी समझाते हैं प्रीफेस में, अपने मन को इधर उधर से खींच खाच के कृष्ण के चरण में डाल दो, उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। भक्ति का मतलब क्या सोचते हैं जब भक्त को देखते हैं, उसका मन कृष्ण के ऊपर एकाग्र है। लेकिन मन एकाग्र करना आसान नहीं, तपस्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, करेक्ट। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, भगवान के ऊपर फिक्स नहीं कर पाएगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधि नहीं हो पाएगी जब तक हमारा मन भोग ऐश्वर्य से विचलित रहेगा, करेक्ट। ये तो शास्त्र का ज्ञान है। तो यही हमारा भक्ति का मार्ग है। भक्ति के में जितने भी स्टेप्स हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, मतलब हमारा मन कृष्ण पे एकाग्र है। तो उसने अपना मन एकाग्र कर दिया और भक्ति में प्रगति करने लग गया। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कोट कर रहे हैं। यस्त्र इंद्र गोपमतवेन्द्र अहो सकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातन होते कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत फेमस श्लोक है। मैं इसका तात्पर्य देख रहा था, बक्संद प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर तात्पर्य है। यस्त्र इंद्र गोपम अथवेन्द्र अहो सकर्मा। देखो सब लोग अपने कर्म के अनुसार, श्री राधा गोविंद की।
तो सब लोग अपने कर्म के अनुसार फंसे रहते हैं, सब लोग। इंदिरा ले लो, एक छोटा कीड़ा इंद्रगोप ले लो, सब अपने कर्म के अनुसार फंसे हुए हैं, ठीक है ना, ये तो सत्य है। जो कीड़ा भी अपने कर्म के अनुसार, कभी कभी श्री श्री राधा गोविंद की जय, जैसे हम देखते हैं रोड में आगे निकले कहीं गए, देखिए एक बिल्ली मरी हुई है, कुत्ता मरा, अपने कर्म के अनुसार सब फंसे हुए हैं। कर्म के अनुसार बस चले जाती है एक छोटे से बिल्ली पे, देख के बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, कर्म के अनुसार सब चल रहा है। डेस्टिनी, क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी के अनुसार सब चल रहा है। और कृष्ण टोटली इम्पार्शियल है, जैसे कर्म किए वैसे भोगो, वो टोटली इम्पार्शियल है। और ये एक स्लो लर्निंग प्रोसेस है, इसमें डंडे मार मार के धीरे धीरे सिखाया जा रहा है आदमी को, अरे तुम भगवान पे एकाग्र हो जाओ मूर्ख, तुम्हारा काम वही है। नौकर का काम क्या होता है, पूरे टाइम मालिक क्या आदेश दे रहा है रखने का, है ना। तो हम सब भगवान के नौकर हैं, हमको 24 घंटा भगवान की क्या डायरेक्शन है, रेडी रहने का, है ना, टोटली ऐसा रेडी रहने का। तो लेकिन इसके शिक्षा है, तो कृष्ण जी टोटली इम्पार्शियल है, क्योंकि सब लोग अपने कर्म के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार मर रहे हैं, जी रहे हैं, उनको कुछ उसमें दिल नहीं है। जैसा जज, अब जज का भी अपना दिल नहीं लगाता है, क्या किया इसने, जब मर्डर किया है, हाँ इसको फांसी लगा दो। जज ना तो रोता है ना हंसता है, कह रहे इसने क्या किया, इसको बेमतलब में इसने बदनाम किया, ठीक है 2 करोड़ रुपए दे, तो उसको मानहानि क्या होता है ना, मानहानि क्या, उसको दे, उसको क्यों बेइज्जती की। तो ऐसा करके जज, ना तो जज हंसता है ना रोता है। तो सिमिलरली परमात्मा के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता, कर्म भी आपको परमात्मा के सैंक्शन के बिना नहीं मिल सकते। लोग बहुत कुछ सोचते हैं, मैं ऐसा किया, मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं ऐसा वो पूरा किया, उसका बुरा क्यों, ये सब छोड़ो। कृष्णा का सैंक्शन है, आप कितना भी अच्छा किया, कृष्ण के सैंक्शन के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, उनका डिसीजन है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं अच्छा किया तो अच्छा होने का, फोर्स नहीं कर सकते, भगवान नहीं दे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, आप समझ रहे। भगवान, आपने अच्छा किया, पुण्य है, लेकिन भगवान चाहे तो तब भी आपको पुण्य का फल नहीं दे सकते, उनको फोर्स नहीं हो सकता। पुण्य का फल उनके हाथ में देने का, हो सकता है ना दें, उसको बोलते हैं कर्म मीमांसा थ्योरी, जैमिनी की, उसमें है मैंने अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा, भगवान से क्या लेना मेरे को। पुण्य करो, अच्छा जीवन जियो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा अच्छा होगा। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, सब कुछ सफल हो जाएगा। लेकिन भाई मूर्ख, तुम जितना ही मेहनत करो, अगर भगवान सैंक्शन नहीं करे तो गरीबी रहोगे पत्थर तोड़ते रहो, बस कुछ नहीं होगा। भगवान की सैंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट भगवान बहुत इम्पार्शियल है, जनरली लॉज ऑफ कर्मा काम करते रहते हैं, जस्ट लाइक जज चाहे तो कुछ भी कर सकते। So judge, if he wants, he can do. So similarly, Krishna, जब भक्त इन्वॉल्व होते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे शब्द में बोलते हैं, एक्चुअली कृष्णा तो टोटली इम्पार्शियल है, कभी किसी को फेवर नहीं करते, सबके लिए बराबर रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक भक्त इन्वॉल्व होता है, कृष्णा का कंट्रोल छूट जाता है। वो जैसे किसी से, वो भक्त से इतना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं कि कृष्ण का कंट्रोल छूट जाता है, वो फिर पार्शियल हो जाता है, समझ रहे। भक्त को, जैसे धृतराष्ट्र ने बोल रहा था, बेटे को देखता हूँ मैं बेकाबू हो जाता हूँ, दुर्योधन को बोलते मेरे को मालूम है क्या सही है गलत है, लेकिन जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ। सिमिलरली भगवान भी एक्चुअली बहुत इम्पार्शियल है, लेकिन जैसे उनका भक्त आता है, ही लूजेस कंट्रोल। जैसे जज है, वो डेथ पेनल्टी दे रहा है, अवार्ड दे रहा है, उसका बेटा आता है, वो विचलित हो जाता है ना, नेचुरल। तो सिमिलरली प्रॉपर सेज इट इज नेचुरल, इट इज नॉट पार्शियलिटी। ये डिस्कशन बहुत बारी भागवतम में, बहुत बारी कृष्ण पार्शियल क्यों है एक्चुअली। भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नम द्वेषु अस्ति न प्रिया ये तू भजंती माम भक्तिया। मैं तो सबके लिए बराबर, ना मेरा कोई दुश्मन है, मेरा कोई दोस्त है, बट ये तू मतलब बट, एक बहुत बड़ा बट है। क्या बट है?
भजन्ति माम भक्त्या, जो मेरे को प्रेम से भजन कर रहा है, मैं तेषु चापि हूँ, मैं उसी के दिल में हूँ, वो मेरे दिल में है, और मैं फिर कंट्रोल छूट जाता है मेरा। तो दैट इज प्रॉपर से नेचुरल। एक बारी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक राजा का डिस्कशन चल रहा था इसी चीज पे अपने मंत्री से। तो क्या हुआ कि कभी कोई आदमी नदी में डूब रहा था, तो राजा ने इमीडिएटली अपने कमांडर को बोला जाओ जाओ उसको बचाओ, तो सोल्जर्स को भेजा, उसको बचा दिया। तो एक दिन उनके ही राजमहल में उनका बेटा डूब रहा था, वो खुद कूद गया, किसी को बोला नहीं, खुद कूद गया। सो दिस इज नॉट दैट। तो तब मंत्री ने समझाया, देखो आप खुद क्यों कूदे, आपका बच्चा था, उसमें कोई दूसरा। तो सिमिलरली कृष्णा सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन भक्तों को स्पेशल प्रोटेक्शन रहता है। नॉर्मल दुनिया में इट्स अ बैलेंस। जैसे आप राजा को थोड़ा जानते हैं, ज्यादा नहीं, तो उसकी नजर में है, तो नियम के अनुसार चलते रहेंगे। जैसे आप ट्रैफिक लॉज हैं, ये सब आप पालन करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं है। कोई ट्रैफिक लॉ ब्रेक करेंगे, आपको थोड़ा फाइन है जाएगा, है ना। राजा आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और लेकिन जब राजा को मिलने जाएंगे तो राजा की नज़र आप पे है, तो जब राजा की नज़र आप पे है तो आपको कुछ प्रिविलेज मिलते रहेंगे। तो शुरू में हमारा जो भक्ति का भी स्थिति है, दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। कुछ डिग्री से हम सरेंडर हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, ममा वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो किस डिग्री से हम भगवान के सरेंडर हैं, उस डिग्री तक भगवान का पर्सनल कंट्रोल है, बाकी आपके कर्म के अनुसार चलता है। जैसे आप बांध डाल देते हैं, जैसे आप भक्ति में कोई भी आदमी भगवान के शरण लेता है, एक बांध बन जाता है। बांध मतलब डैम बन जाता है, कर्म सीधा नहीं आता। लेकिन सरेंडर थोड़ा कमजोर है, इसलिए वो डैम का स्लूज गेट्स होते हैं, बड़े गेट, पानी छोड़ता रहता है, थोड़ा कर्म भी आता रहता है, थोड़ा प्रोटेक्शन भी है। जितना आप सरेंडर्ड होते हैं उतना डैम काम करता है। जैसे अर्जुन कृष्ण को टोटली सरेंडर थे, तो कभी भी नहीं बोल सकते हम कि पांडव लोग इतना दुख जिंदगी में जिए उनके कर्म के अनुसार। उन्होंने तो पाप कर्म किया ही नहीं, वो तो शुद्ध भक्त है भगवान। जैसे प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त, कभी भी गलती से भी नहीं सोचना चाहिए कि प्रहलाद महाराज इतने, उनको मृत्यु का उनका दंड मिला उनके पिताजी से, उनका पाप कर्म था। नहीं, उनको तो पाप कर्म कुछ नहीं, वो तो शुद्ध भक्त है। वो भगवान उनके लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, कर्म छू भी नहीं सकता उसको, समझ रहे हैं। तो शुद्ध भक्त के लिए भगवान खुद पूरी उनके जीवन को ऐसे रहता है, पूरा सुरक्षा रहता है। इसलिए अर्जुन को भगवत गीता में कृष्ण को ऋषिकेश बोला गया था। ऋषिकेश मतलब वो इंद्रियों के मालिक है, कंट्रोलर के। तो नॉर्मल डिवोटी के लिए थोड़ा रहता है भाई पार्टनरशिप टाइप, 5% भगवान का सुरक्षा, 90% उनके कर्म की सुरक्षा। कर्म से भी सुरक्षा रहती है, अगर मैंने पाप कर्म नहीं किया है तो मेरे को कोई दर्द नहीं आ सकता, सुरक्षा है। आप अगर चाहें किसी को तंग करने का, अगर उसने पुण्य किया आप उसको तंग नहीं कर पाओगे, करेक्ट। प्रॉपर बहुत अच्छा सेविंग है, यू कैन नॉट हार्म, नोबडी कैन हार्म यू अनलेस यू हार्म योरसेल्फ। इसके इंग्लिश में सेइंग है, शायद उसको पता है नहीं पता है, जनरली कर्म थ्योरी वेस्टर्न वर्ल्ड में उसका सिर पैर भी लोगों को मालूम नहीं है। बट मेन पॉइंट इज दिस कि unless I create a space, nobody can harm. Correct? Nobody can harm you unless you harm yourself. तो मेरे ही कर्म अगर कुछ उल्टे हैं तो कुछ मेरे को मुश्किल हो सकती है, लेकिन शुद्ध भक्त को मुश्किल जब होती है वो भगवान की बनाई हुई है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। और जो बीच में जो डिवोटीज है, इट इज परसेंटेज, 10% कृष्णा's अरेंजमेंट, 90% कर्मा's अरेंजमेंट, बिकॉज वो डंडे की भी जरूरत है उसको। कर्मा मतलब डंडे से सीखता है, और कृष्णा का करेक्शन मतलब प्रेम से सीखता है। तो शुद्ध भक्त है वो भगवान से प्रेम से बात कर रहा है, उसको डंडा मारने की क्या जरूरत है। और जानवर को खाली डंडे से सिखाया जाता है, ऐसा है भाई। आप रोड में जा रहे हैं, एक जानवर कुत्ता बैठा हुआ है, क्या बोलोगे, चले जा, नहीं चलता है, चलता है क्या, नहीं चलता। हाँ, या आपको हल्ला करना पड़ता है, चिल्ला। कभी कभी कुत्ते पीछे आ जाते हैं आपके, क्या करते हो, आपको डराना पड़ता है उसको। हाँ, वो ऐसा नहीं होगा आप मुस्कुरा के, वो नहीं चलता, वो ज्यादा भौंकेगा आपकी तरफ, वो नहीं चलता है। तो सिमिलरली जानवर के लिए डंडा, तो जितने हम जानवर है उतना डंडा हम पे चलता है। कर्म बेसिकली
एक जानवर का डंडा ही है ना। हम भी जितनी बुद्धि हमारी जानवर की जैसी है, डंडे से ही सीखते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं हम लोग। लेकिन जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, अभी हम श्रुति से भी सीखने लगते हैं ऐसा नहीं करने। तो उस आदमी को आपको डांटने की या उस आदमी को आपको डंडा मारने की कोई जरूरत नहीं है, करेक्ट। जो आदमी पहले शास्त्र से सिखाया जाता है, भाई देखो ये सब तो काम ठीक नहीं है, क्यों कर रहे हो ऐसा काम, एक बारी अवसर देना चाहिए। लेकिन आप नहीं सीख सकता तो फिर आप डंडा निकालते। राजा का भी काम यही होता है, पहले वो शास्त्र सिखाता है, फिर वो शस्त्र से सिखाता है ना। शास्त्र के बाद शस्त्र आता है। तो वशिष्ठ मुनि को भी थोड़ा समझना था, पहले ही शस्त्र निकाल दिया, जरूरत नहीं थी। वो तो इतना बड़ा भक्त था, देखो बेमतलब में उसको श्राप दिया। लेकिन भक्त की सुरक्षा हमेशा रहती है, उस श्राप का कोई एक्ट नहीं आता। यस्त्र इंद्र गोपम अथवेंद्र अहोस कर्मा, सब लोग अपने कर्म के अनुसार डंडे से ही सीख रहे। इंद्र हो या एक छोटा कीड़ा इंद्रगोप हो, बंधान रूप फलभाजन मातुनो दिया, अपने कर्म भोग रहे। कर्मानि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजम, लेकिन कृष्ण जी बहुत अद्भुत हैं, ये उनकी बहुत अद्भुत नेचर है, ये उनका बहुत ही वंडरफुल नेचर। Bhaktivinoda Prabhupada says it is his very wonderful nature that is very partial to the devotees. When he sees devotees involved, he burns, पूरा फाड़ के फेंक दिया। जो होता था ना, आपके अगेंस्ट FIR लॉन्च किया है, माया ने FIR लॉन्च किया कि इसने गाय मार दी, तो वशिष्ठ मुनि ने श्राप भी दे दिया उसके अनुसार। तो फाइल कृष्ण के पास गई, तो कृष्ण को तो उसको दंड देना था, लेकिन देखा भक्त है, पूरा फाइल ही फाड़ के फेंक दिया, छुट्टी जा, वैकुंठ जा। करेक्ट, ये कृष्ण कर देते हैं उनके, ये उनका अद्भुत है। दैट इज अ वंडरफुल नेचर ऑफ कृष्ण। व्हेन ही सीज अ डिवोटी, भगवत गीता में कृष्ण ने इसका प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा। तो प्रॉमिस किया है, एनी प्रॉमिस, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, किया ना भी, उसको सारे पाप कर्म से मुक्त कर दिया। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा।